Dear students of become final year English medium and Hindi medium. Again, the today's lecture is related with process account, and this numerical problem has been already wrote by me on the whiteboard. Though this is a university example, I think so in the summer 2003 the numericals was there, and on the basis of this numerical problems we will prepare the process A account, process B account and process C account. The name of the column is absolutely the particulars, because the quantities are given in the numerical problem in term of kilogram. Therefore this is the kg and this is the rupees. Absolutely 1, 2, 3, this column is a debit and other 3 is the credit. Now we come to the point. From the following details prepare process account, and the details are available. Hindi medium students, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम करने जा रहे हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार बीकॉम नागपुर यूनिवर्सिटी में 2003 के अंदर में और 99 में भी रिफ्लेक्टेड हुआ है। तो प्रॉब्लम्स में 3 प्रकार की प्रोसेस के डिटेल्स दिए हैं कि ए प्रोसेस का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमको बनाना है प्रोसेस ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट। बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मटेरियल की क्वांटिटी किलोग्राम में दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो मैंने कॉलम्स बना करके ट्राई करने की कोशिश की है, देखिए किलोग्राम, ये रुपीस। प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम द मटेरियल इंट्रोड्यूस। मटेरियल introduce, because we have to prepare all the 3 process, but process will prepare one by one. पहले प्रोसेस ए को कंक्लूड करेंगे, फिर बी को कंक्लूड करेंगे और बाद में प्रोसेस सी होगी। एंड ईच एंड एवरी टाइम we will strictly follow the instructions which are given in the numerical problem for solution. और जब भी हम प्रोसेस को बनाएंगे तो पहले ए प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिर बी कंप्लीट होगी, फिर सी कंप्लीट होगी, और हर प्रोसेस को बनाते समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उस प्रोसेस से रिलेटेड जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उसको हमें फॉलो करना है, उसका हमें पालन करना है। So therefore the problem start from material introduce. How much kilogram? 1200. So it is in the column of kg. The next, rate of material per kg. So therefore we should not write again here the rate of material, but it will be the material introduced at the rate of rupees 400 per kg. This is the procedure to calculate the amount and write the sentence. So what will be the total amount? So 1200 multiplied by 400. Look here, 4,80,000. When you observe the video, you should keep your calculator with you so that you must be in a position to calculate simultaneously. Then wages, rupees 1,03,000. Quantity is only for materials. Then other expenses. Other expenses rupees 42,200. Next, normal loss. Normal loss is the credit side transactions. Why? Normal loss, and as per the numerical problem it is 2%. Now 2% of how much? So the introduced material. Introduced material is 1,200. 1,200 का 2%. So 1% is 12. So 2% is equal to 24. Normally normal loss cannot be said, but if suppose it is given in the numerical problem, so you forget your rules and follow the instructions whatsoever it may be given in the numerical problem. Normally normal loss सेल नहीं किया जाता है, लेकिन दुनियादारी बाजू में रखिए। यदि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के गणित में उसे बोल दिया न्यूमेरिकल
कि नॉर्मल लॉस को सोल्ड किया, तो आप वो वहां पर एक्सप्लेनेशन देकर के अपनी होशियारी नहीं बतानी है हमको कि नॉर्मल लॉस सोल्ड नहीं होता इसलिए प्रॉब्लम रॉन्ग है। प्रॉब्लम रॉन्ग हो चाहे करेक्ट हो, उसने सोल्ड किया। आप ये मान के चलो कि दिस इज नाउ नॉट ए नॉर्मल लॉस, इट मे बी स्क्रैप ऑन बाय प्रोडक्ट। ओके, सो 24 it is sold at the rate of sale of normal loss per kg 80 at the rate of rupees 80 per kg. 80 per kg means 0 8 32 2 3 8 2 16 3 1920 1920. Normal loss 2% of introduced material, so 2% of 1200 is equal to 24. 24 multiplied by at the rate of rupees 80. Therefore, the total cost of normal loss is 1920. Now productions, so how will be the production? So 1200 unit introduced and the cost is 200 325 6,25,200. The total would be here 1200 and 6,25,200. Now no other details are available. और कोई डिटेल्स इस प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है 1200 किलोग्राम मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 24 केजी जो है नॉर्मल लॉस निकलने के बाद बचा कितना 1176 1176. But as per the numerical problem, look here, this is the fundamental things. The whole productions are not transferred to process B, but instead of process B, what instructions are? Production. So look here, there the production transfer to production, transfer to process B, because A का प्रोडक्शन है तो फाइनल रूप से वो B में डायरेक्ट गोडाउन को नहीं जाता है, B में जाएगा। बट इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि ये जो प्रोडक्शन है इसको दो जगह उसने ट्रांसफर किया है। सो वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मैं बार बार कह चुका हूं कि भी प्रोसेस अकाउंट के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्शंस है, ये प्रोडक्शंस का गोडाउन में कितना भेजा 1/3 और नेक्स्ट प्रोसेस को भेजा है 2/3। सो नेक्स्ट प्रोसेस में बी को भेजा है 2/3, इसको भेजा है 1/3। इसका मतलब है आपका जो टोटल प्रोडक्शंस है, टोटल प्रोडक्शंस का 1/3 ट्रांसफर होगा और वो गोडाउन के लिए जाएगा, 2/3 ट्रांसफर होके बी को जाएगा। मुद्दा ये है कि टोटल प्रोडक्शन है कितना, तो 1200 में से 24 माइनस करो तो कितना आएगा 1176 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज इसके दो हिस्से होंगे, टेक्निकली 3 हिस्सा, देयर विल बी 3 पार्ट, 1 part will be in the godown and 2 part will be in the process B. So multiplied by 3. ये आ गया, देखिए इज इक्वल टू 3 3 9 2 7 3 9 27 और 3 दूनी 6 392. 392 is a 1/3. It is for godown. तो इसका डबल जो है वो जाएगा प्रोसेस को। 2 दूनी 4 9 दूनी 18 की 8 38 के 1 7. सिंपल इक्वेशन इज टोटल इंट्रोड्यूस यूनिट माइनस वेस्टेज इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन 1176 का 2 हिस्सा जाएगा प्रोसेस बी को, 1 हिस्सा ट्रांसफर होगा गोडाउन में, तो टोटल हिस्से कितने होंगे, 2 हिस्सा बी का, 1 हिस्सा गोडाउन का, टोटल हिस्से हो गए 3। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था उसको 3 से डिवाइड करें तो ये निकल गया 1 part will be transferred to godown and the next part will transfer to, similarly for amount also. अमाउंट में देखिए 6,25,200,
625 200 में से 1920 घटाइए, मतलब आपको करना होगा ये 6,25,200 माइनस 1,920, इट विल बी ये 0, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गए तो 2, 4 में से 1 गया 3, ये 2, 6,23,280. The same procedure is for calculation of amount as well as quantity. क्या किया था, 1200 में से 24 माइनस किया, 1176 बचा, 3 से भाग दिया, एक हिस्सा गो डाउन, 2 हिस्सा प्रोसेस. सेम टोटल 625 में से 1920 घटाओ, बच गया 623,280. इसको 3 से डिवाइड कर दो. जब 3 से डिवाइड करें, ये देखिए 3 दूनी 6, 0, 3 7 21, 3 4 12, 3 दूनी 6, एक मिनट कैलकुलेटर लेता हूं मैं, 623,280 divided by 3, therefore 2,07,760. 2,07,760. अब इसका टोटल ही डबल 4,15,520. अगेन रिपीट. प्रोसेस ए, प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल डाला 1200 रुपए, सॉरी 1200 केजी, ये उसकी कॉस्ट है. लेबर चार्ज लगा, अदर एक्सपेंडिचर लगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 केजी इज 625,200. इन द प्रोसेस देयर इज ए नॉर्मल लॉस 24. सो 1200 केजी में से 24 माइनस हुआ, प्रोडक्शन 1176. बिकॉज दिस प्रोडक्शन इज डायरेक्ट नॉट ट्रांसफर टू आइदर गोडाउन और प्रोसेस. As per the numerical instructions, look here. Production go down to transfer 1/3, next process transfer 2/3. Therefore, 2 plus 1 is equal to 3. Divided to 1176. So this is the one share. 1/3 is equal to transfer to go down. The double of this will transfer to process. Similarly, the total cost 625,200. Now this 625,200 will minus 1,920 for normal loss value. Therefore, the net cost would be 6,23,280. It will be divided again 3 because 1/3 for go down, 2/3 for next process. अब 1/3 निकालिए, उसका डबल कर दीजिए, तो प्रॉब्लम्स विल इक्वल. ओके, अब देखिए द प्रोसेस ए में से कौन सा प्रोडक्शन बी को ट्रांसफर हुआ है, 2/3. तो वो पहले यहां पर हम लिखेंगे 2 प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए. हाउ मच क्वांटिटी, 784 एंड द वैल्यू 4,15,520. दिस इज द फर्स्ट steps of process B. Then we come to the numerical problem. Again, look here. Material introduced in the process B also. Therefore, material introduced at the rate of ₹500. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अनुसार ये ए प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई. बी प्रोसेस से जाएंगे, उसे मटेरियल कितना लगा है, 216 केजी, 216, और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, तो रेट ऑफ मटेरियल पर केजी ₹500. so 500 multiplied by 216 is equal to 1,08,000. So material is over, rate is over. Now the wages. Wages 44,200. 44,200. Then other expenses.
other expenses 37,400. 37,400. Then by normal loss, how much percent? Here is it is 3%, and it will be sold at the rate of rupees 150, at the rate of rupees 150 per kg. Therefore, we will calculate. So before calculate the normal loss, make the total. 6 4 10 की 0 1 8 9 10 की 0 2 10. ठीक है? It means this is the total input. Input from process is 784, and the individual separate input in the process be 216 kg. Therefore, total material introduced in the process B would be 1000. 1000 का 3%. कैलकुलेट कीजिए, आसान तरीका है. Is 30 kg. It will be sold at the rate of rupees 15. तो 15 तिया 45 2 0 4,500 will be the cost of normal loss. Then जो बचा वो प्रोडक्शन है. 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, उसमें से 30 kg नॉर्मल लॉस निकल गया, तो बचा 970. दिस इज अ प्रोडक्शन, बट दिस प्रोडक्शन अगेन ट्रांसफर टू प्रोसेस C is equal to half 1/2 and transfer to godown 1/2. पहली प्रोसेस में 2/3 ट्रांसफर हुआ था. इट विल बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ बी के लिए उसने क्या कहा है? द प्रोडक्शन विल ट्रांसफर टू गोडाउन 1/2 and the next process to 1/2. Now how it will be calculated? So before calculate the remaining things, we make the total 4,15,520 plus 1,08,000 plus 44,200 plus 37,400 is equal to 6,05,120. 6,05,120. Both sides the total kilo 1,000 kg and 6,05,120. मतलब first we make the total. The total will reflected in the credit side, and then we'll deduct. So 1,000 minus 30 is equal to 970. Now 970 is the total production, and it will be divided in 50-50. Therefore, divided by 2. 485 will transfer to process C, and 485 will transfer to godown. Similarly, we calculate the total. The entire total is 6,05,120. इसमें से ये जो था 6,05,120 माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस 4,500. इसमें से 4,500 माइनस करो तो ये निकल के आ गया आपका 6,620. नाउ इट विल बी डिवाइडेड इन 50-50. सेम प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी जैसी प्रोसेस को और गोडाउन को ट्रांसफर करने बोला है, उसी सीक्वेंस में आपको अमाउंट भी ट्रांसफर करना है. और पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, टोटल यूनिट का 3% नॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी है, कैलकुलेशन हो गया. अब दोनों तरफ पहले डेबिट की टोटल कंप्लीट करो. टोटल को रिफ्लेक्टेड टोटल क्रेडिट में ले जाइए. 1000 kg में से 30 kg नॉर्मल लॉस निकल गया. Therefore, the total production should be 970, because it full production will not transfer to process C, because there is a instructions in the numerical problem कि half productions will transfer to process C
and half production transferred to godown. Therefore 970 ka 50% will transfer to godown and 50% to next process. Similarly, calculation will be for amount also. So 6,05,020, 120 is the total, will minus selling price of normal loss 4,500. Therefore balance would be 6,25,000. अब इसका 50-50 3,03,110 and 3,03,110. This will be the calculation. Now A प्रोसेस बनाया, इसमें से जो B को गया वही B में ट्रांसफर हुआ A से. सिमिलरली B में से जो प्रोडक्शन था उसमें से ये सबसे लास्ट वाला तो गोडाउन में चलेगा, बट हमें बनानी प्रोसेस C. तो यहां पर हम पहले लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस B. तो प्रोसेस B से कितना प्रोडक्शन आया तो देखिए 485 और कितने रुपए का, so 3,03,110. First fundamental process we have to transfer the production of earlier process to next process, then we'll go again for numerical problem. देखिए जब भी A कंप्लीट हुई थी अभी हमारी B प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो टेक्निकली ये देखिए ये मामला खत्म हो गया. इट्स ओके. नाउ वी फोकस टू प्रोसेस C. What indicators? Material introduced 115 kg. So 2 materials introduced 115 kg at the rate of rupees. So look here, the rate of material per kg 600. So what will be the cost? So the 115 into 600, therefore cost would be 69,000. Again here the wages. So this is the wages 12,840. Then other expenses 8,600. Look here, the wages and other expenditures are continuously required, but it will depend on the process to process. जो अमाउंट A में है वही B में और वही C में रहेगा, कभी भी जरूरी नहीं है. कुछ खर्च कम ज्यादा होंगे, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, एडिशनल भी हो सकते हैं. आगे जाके आप देखोगे तो एक दो एक्सपेंडिचर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो प्रोसेस A में नहीं थे लेकिन B में है, जो प्रोसेस B में नहीं थे लेकिन C में. इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल लॉस, हियर इज द 5%. सब कुछ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. वहां 2% या 3% या 5%. आप बोलेंगे सर ऐसे रूल्स है क्या? रूल्स नहीं है. जो इंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम में अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ 5%, यहाँ 3%, यहाँ 2% भी हो सकता है, यहाँ 10%, यहाँ 2% या 0 भी हो सकता है. पहले 0, दूसरे में 10, तीसरे में 2 भी हो सकता है. इसीलिए ये भूल जाओ कि परसेंटेज का कोई रूल्स है. हाँ, नॉर्मल लॉस, वेस्टेज, स्क्रैप, ऑल विल डिपेंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अब 5% जो है ये भी सोल्ड हो रहा है, therefore at the rate of rupees. So look here, the normal loss 5%. The sale of normal loss per kg at the rate of rupees 200. First we have to decide what will be the quantity of normal loss. So first we make the total of debit side 85 15 500 600. This is the introduced material in process C. प्रोसेस C में टोटल मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना हुआ तो B से कितना आया था 485 और सेपरेट इंडिविजुअल मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसेस C में कितना हुआ 115.
तो दोनों मिलके कितना हुआ 600। 600 का 5% कैलकुलेट कीजिए 30 होता है। 600 का 10% 60, तो 5% 30। क्या रेट से बिक रहा है 200, तो वैल्यू कितनी हुई 6000। सिंपल इक्वेशन। अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो बता रहा हूं 2% 1200 के 24 multiplied by 80 therefore 1920. Here the 3% of total input 1000 is equal to 30 multiplied by 150, to 150 into 30 is equal to 4500. Again in the process C, total input 600, so 5% of 600 is equal to 30. The rate of normal loss is at the rate of 200 per kg. Therefore 200 multiplied by 30, therefore 6000. Now the production. अब देखिए आपके प्रॉब्लम्स में ये दिया हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस उसको रिक्वायर होती है। तो पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। अब कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस सी is the final process, and whatsoever it may be productions we obtained from this process will direct now transfer to godown because no further process is balance. अब कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है। पहले प्रोसेस में हो गया कि 2 3 जो है अगली प्रोसेस को गया, बाकी गोडाउन को गया। बी में भी थोड़ा प्रोडक्शन गोडाउन को गया, थोड़ा प्रोसेस को गया, बट अब प्रोसेस सी में से कोई फर्दर प्रोसेस को नहीं जाएगा। therefore प्रोडक्शन we write here direct transfer to godown for sale at the rate of, अब एट द रेट ऑफ आपको निकालनी पड़ेगी यहां पर। तो टोटल 600 minus 30, therefore 570 is the production from process C will transfer to godown. Now what is the cost? 4 5 8 3 11 6 17 9 10 2 12 8 20 2 6 8 1 9 और 3. My one student is here in the video. Therefore the total is okay 390 750. 390 750. यहां पर भी देखिए मैंने पहले डेबिट की टोटल किया था, डेबिट की टोटल क्रेडिट में ले गया, बैलेंस निकाला। इट इज अ इजी वे। नाउ 390 में से ये 6000 माइनस हो गया, ये हो गया 3,84,750. Now this is the cost of 570 kg. So what will be the cost of per unit? तो क्या करेंगे 3,84,750 को 570 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ गई एट द रेट ऑफ 675. किसी को नहीं आ रहा है तो ख्याल रखो 384,750 डिवाइडेड बाय 570. So you got the value. तो आप में से कोई कह सकता है सर आपने यहां भी तो नहीं निकाला। निकालना तो पड़ता है। अब इसको यदि निकालना है तो एट द रेट कितना आएगा, तो सिंपल है, आप कोई भी एक का कैलकुलेशन कर लीजिए. फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ गोडाउन ट्रांसफर टू 2,07,760 डिवाइडेड बाय 392. ये देखिए 2,07,760 कॉस्ट है 392 केजी की, तो 1 केजी की कॉस्ट आ गई इज इक्वल टू 530. अब आप 530 को इससे मल्टीप्लाई करो तो भी यू गॉट द वैल्यू ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोसेस बी. सिमिलरली इन हियर आल्सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3,310 and divided by 485, hence 8619 at the rate of
619.20. So this is the answer of process account and this is the nature. Hope you understood. As final production is 570 kg, cost is 3,84,750 and per kg cost is 675. Thank you.